वन बाय वन देख लेते हैं। ऑल स्किनर बॉक्स है जिसमें रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी हम सारे एक्सपेरिमेंट्स वन बाय वन देखते हैं। सेकंड, एयर क्रेब का एक एक्सपेरिमेंट था। और थर्ड, प्रोजेक्ट पिजन का एक्सपेरिमेंट था, क्यूमुलेटिव रिकॉर्डर का एक्सपेरिमेंट था। लेट्स वॉच द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ BF Skinner. I have the video. Let me play it. And we're going to try another pigeon now. And so just confirm me if you can hear the voice of the video or not. Yes, sir, we can hear. Okay. And we're going to try another pigeon now. And I will try to pick out some particular pattern of behavior and make it a more frequent part of the repertoire of the bird. Very fine. That bird has been already conditioned to eat when the magazine sounds and the light flashes. Now we'll just watch its behavior a bit. It's not doing anything in particular, you see, but I'm going to try to get it to do something. Suppose I shape up the behavior of making a complete turn. What I do is simply, as I did then, to wait for some part of that behavior. There's more of it, you see. You can see that the effect is instantaneous. I'm waiting for it to turn counterclockwise now. And then I reinforce that movement. And I wait for a more pronounced movement than that. It's got to be more than that. There we go, all the way around. Okay, so that was the behavior, the experiment from the BF Skinner. So basically, this experiment called the Skinner box. Let me open the slide just a second. Operant conditioning is based on the idea that we can increase or decrease a Okay, so basically, it was the experiment which called the Skinner box. In that certain behavior by adding a consequence. For example, if a dog Okay, in that experiment, what happened? Skinner actually put a pigeon in a box, and there was a lever there was a key was installed inside, and when the pigeon packed it, and food was delivered through a dispenser. And initially, pigeon would pack the randomly, and through reinforcement, it learned that packing led to reward. So whenever the pigeon packed, there was a food. So he learned to press that button with the beak. So जब भी वो बटन प्रेस करता था, ये लीवर पे पैक करता था, सो अपनी बीक मारता था, उसको वो फूड वहां से मिल जाता था. So that was actually the behavior of pigeon was reinforced by the food. So basically इसका ऑब्जेक्टिव जो था, वो बिहेवियर्स को कैसे हम शेप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं थ्रू reinforcement. Okay, so there is another experiment of on a dog. वो एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट था, क्लासिकल कंडीशनिंग था. वो भी हमने स्टडी किया, वो लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so the same experiment he did with the rat. So जैसे ही rat भी लीवर को पुल करता था, ये प्रेस करता था, so rat को भी फूड प्रेजेंट हो जाता था फौरन से. और so he learned that whenever I press that lever, so मुझे फूड मिल जाता है. So इस तरह के इसके जो स्किनर है, इसके बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स भी शो करते हैं कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम बिहेवियर्स को शेप भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं. ठीक है. सो जेबी वॉटसन का जो हम पहले कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे कि जेबी वॉटसन ने जो हमें साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स दिए थे, और लेकिन स्किनर एक्चुअली वाज टोटली डिफरेंट. ही ओनली फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स
that can be changed through the reinforcement and can be maintained through the reinforcement. So the concept J.B. Watson, the concept B.F. Skinner gave us is the positive reinforcement and negative reinforcement. So let's focus on what is the positive reinforcement. I want all of you to participate in this discussion. Okay, first of all, who is going to explain what is the positive reinforcement? Come on, guys, speak up. Sir, I would like to Assalamualaikum. show a very easy example. Like whenever I drive, when I just start my car and sit on my car seat, so it started to like beep. So until I like fasten my seat belt, it like keep beeping. So this is the positive reinforcement. Okay, okay, good. So, any, Sir, positive. सर मैं ऐड करूँ कुछ? yes, please, correct. Sir, positive reinforcement is like a so reinforcement is all about to increase the behavior. So positive is mean कि आप something add pleasurable thing and जो कुछ उसके interesting है उसको add करना. It's a ठीक है, positive reinforcement. Add something. ठीक है, very good. To add something like candies we give to the child, so that candy serves as a reinforcement. हबीबा आपने कौन सी आपने एग्जांपल दी थी reinforcement की? सर मैंने कहा था कि लाइक हम सीट बेल्ट अपना जब तक नहीं बांध लेते तब तक हमारी बीप हो रही होती कंटिन्यूअसली अनटिल और अनलेस वी जस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट तो वो एक लाइक कानों पे चुभ भी रही होती है बट वी हैव टू डू इट अगर नहीं करेंगे तो हमारा जाहिर सी बात है वो चालान भी लगेगा Yeah, तो हमको ये करना जरूरी है exactly. So, what kind of reinforcement it is? पॉजिटिव Are you sure? It's a negative reinforcement. सॉरी So हाँ it is a नेगेटिव negative. So, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सॉरी yeah. So this is actually the negative reinforcement. Negative reinforcement is when you remove an unwanted stimulus from the environment and that causes the behavior to increase. So that is the negative reinforcement. Okay? So positive reinforcement is the reward we give to the to anyone. अच्छा मैंने भी जब मैं अपना BCBA का कोर्स हुआ कंप्लीट कर रहा था एट दैट टाइम मैंने भी एक एनिमल का जो है वो बिहेवियर इंक्रीज किया था आई जस्ट पेट अ कैट तो तो मैंने उस कैट का बिहेवियर इंक्रीज किया था थ्रू द रीइंफोर्समेंट ठीक है सो वो काफ़ी सक्सेसफुली इंक्रीज हो गया था उसमें फिर हमने वीडियोस भी इंक्रीज उसकी जो है मैंने एक्चुअली उसके लिए भी सेम इसी तरह से एक हमने एक्सपेरिमेंट क्योंकि मैंने हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट आर्टिकल वगैरह लिखना था सो आई जस्ट मैंने एक कैट ली उसको मैंने रखा अपने पास उसको फूड वगैरह दिया प्रोवाइड किया और वो सारी चीज़ें फिर इसी तरह की एक मशीन मैंने जो है इंस्टॉल की थी अपने घर में इन 2018 ये 2018 की बात है सो सेम एनिमल का बिहेवियर जो कैट का था बिहेवियर बटन प्रेस करने वाला वो इंक्रीज हो गया था सो जैसे ही बटन वो प्रेस करती थी तो वो दैट वाज अ मैनुअल मशीन तो उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं थी मैनुअल था वो जैसे ही बटन को प्रेस करती थी तो जो बोतल थी उसमें से ऑटोमेटिकली कैट फूड जो है वो नीचे गिरता था और वो खा लेती थी सो जो BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स है ये दीज आर एक्चुअली यू नो रिसर्च बेस्ड हम जब सेम मेथड यूज करते हैं BF स्किनर के तो हम किसी भी एनिमल का किसी ह्यूमन बीइंग का हम बिहेवियर इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू रीइंफोर्समेंट सो वो काफ़ी सक्सेसफुली जो है उस पर मैंने आर्टिकल भी लिख के अपने सुपरवाइजर को सेंड किया था और इट वाज वेरी यू नो मेरे सुपरवाइजर काफ़ी वो हो गए थे इंस्पायर और काफ़ी खुश थे कि यस यू डिड इट और जो मैंने अपने जहाँ से मैं PCBA का कोर्स वर्क ले रहा था दैट वाज द BMI बिहेवियर मोमेंटम इंडिया सो उनके टीचर ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था उस एक्सपेरिमेंट को क्योंकि मैंने उसकी वीडियोस वगैरह वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की थी एज अ प्रूफ सो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल यू नो
एक्सपेरिमेंट। तो अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हर वो चीज़ जो कि हम अपने इन्वायरमेंट से अनवांटेड चीज़ को रिमूव करते हैं और उससे जो बिहेवियर इंक्रीज होता है, दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा रीइंफोर्समेंट की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू गाइस हैव टू फाइंड आउट। आर यू गाइस रेडी? यस Yes, सर। sir. एक स्टूडेंट है, उसको जब भी टीचर को होमवर्क करती है तो देती है, तो वो बच्चा होमवर्क नहीं करता, तो टीचर उसको स्कोल्ड करती है इन फ्रंट ऑफ द क्लास। सो ड्यू टू द स्कोल्डिंग, सो जब भी वो होमवर्क करके आता था टीचर उसको स्कोल्ड नहीं थी करती, लेकिन एवरी टाइम ही डज नॉट, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता था, टीचर उसको स्कोल्ड करती थी सब पूरी क्लास के सामने। कभी उसको जो है जो है हाथ खड़े करवा देती थी पूरी, कभी कॉर्नर में बिठा देती थी, कभी अलग बिल्कुल कर देती थी, जिसे हम जो है टाइम आउट कहते हैं, वो कर देना। So when one day he just completed his homework and his teacher did not scolded him. So he learned that okay, let's do the homework. So ऐसे ही मैं scold होता हूँ. So what is the procedure applied in this situation? Reinforcement का कौन सा procedure apply हो रहा है? Positive या negative? नेगेटिव। बाकी सब क्या सर कहते नेगेटिव हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपना जो स्कॉल्ड करना है ना उसको रिमूव कर दिया, तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव हो गया। हैं? ठीक है, very good, very good. सही है, very good. So another example is uh, somebody use the umbrella to avoid getting wet in the rain. So is it a negative reinforcement or a positive reinforcement? नेगेटिव। सर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है क्योंकि उसने उससे बचने के लिए अम्ब्रेला को ऐड किया हुआ है। Okay, so let's just find out the behavior first. पहले Sir, सब I मुझे think बताओ it's कि not a पॉजिटिव, reinforcement. पहले सब मुझे बताओ कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्यों नहीं है या क्या क्या। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। Okay, Habiba and Tokir said this is a positive reinforcement. Anybody else? Sir, I think it's not a reinforcement. It's a Okay, so this is actually पॉजिटिव रिइंफोर्स। reinforcement. क्योंकि it is the reinforcement procedure because every behavior every behavior is intended. None of the behavior is unintended. Okay, so हर behavior अगर intended है तो that means हर behavior की एक reinforcement की history है. So keep this thing in mind. So if you are behaving in this way, so previously आपको इस तरह behave करने पे reinforce किया गया था, that's why you are behaving right now in this way. ठीक है, so इसलिए अगर वो behavior sustain कर रहा है, so उस behavior की reinforcement की history exist करती होगी must. इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। So the answer is it is negative reinforcement. Akash, you were right. So from all of you, Akash answered right. She said it's a negative reinforcement. Akash, can you please explain it? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो रेन को अवॉइड करने के लिए अम्ब्रेला ऐड की थी, तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट में कोई भी चीज अवॉइड करने के लिए या ऐड रिमूव करते हैं ताकि बिहेवियर जो है स्ट्रेंथन हो जाए, ताकि मतलब एक दफा अम्ब्रेला ली तो नेक्स्ट टाइम भी अम्ब्रेला लेंगे ताकि रेन को अवॉइड कर सके। Very good, Akash. Very good. So basically, इस सिचुएशन में, पूरी सिचुएशन में जो बिहेवियर इंक्रीज हुआ है वो अम्ब्रेला निकालने का बिहेवियर इंक्रीज हुआ है, अम्ब्रेला खोलने का बिहेवियर इंक्रीज हुआ है। किस वजह से? कि जो अनवांटेड स्टिमुला है जिससे वो पर्सन गीला हो रहा है बारिश से, अब वो बारिश को अवॉइड कर पा रहे हैं थ्रू अम्ब्रेला। सो थ्रू अम्ब्रेला वो अवॉइड कर पा रहे हैं। सो हम एक इन्वायरमेंट से कोई चीज़ ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं,
So that is the rain, water through umbrella. So umbrella is the response. वो response increase हुआ, next time भी उस बारिश होगी, he will use the umbrella, he knows that कि मैं गीला नहीं होऊंगा इससे, so he will use the umbrella. So this is a negative reinforcement. ठीक है. Next example है, a child gets to play a video game after finishing reading task. This is Positive positive reinforcement. reinforcement. This is positive reinforcement. ठीक है, very good, very good. So जो next example है, a therapist lets a child take a break after completing a task. This Positive is also reinforcement. positive reinforcement. Are you sure? Is it positive? How is it possible? Positive. जी सर, जल्दी वो से. जो ब्रेक टेस्ट देता है वो टास्क कंप्लीशन सर को ये देता है, नेगेटिव टास्क रिइंफोर्समेंट है। कंप्लीशन। वो जो ब्रेक टाइम है वो बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट है, और टास्क भी कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट टाइम वो टास्क जल्दी कंप्लीट करेगा कि मुझे ब्रेक मिलेगी। ब्रेक क्या चीज है? हो सकता है बच्चे के लिए सर ये रीइंफोर्समेंट हो। सर ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है क्योंकि जो काम होता है वो अनवांटेड है। Yes. तो अनवांटेड को वो अवॉइड करने के लिए हम उसको जैसे हम यूज करते हैं escape बिहेवियर के लिए ब्रेक टाइम यूज करते हैं, तो वो इट्स अ नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कि हम कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं उससे। ठीक है, very good, very good. So basically this is Akash the negative reinforcement. जब हम उसको टास्क दे रहे हैं, टास्क इज अ रीडिंग टास्क बेसिकली, जो भी है या कोई भी टास्क है, दैट इज द हम उसको रिमूव कर रहे हैं। जब वो कंप्लीट होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं। सो किसी भी टास्क को रिमूव करने से जो है उसका वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो कंप्लायंस शो करेगा। टास्क कंप्लीट, उसे पता है कि अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मुझे ब्रेक मिल जाएगी या मुझसे ये टास्क रिमूव कर दिया जाएगा। सो दैट इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यू आर रिमूविंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द तो टास्क कंप्लीशन बिहेवियर। वो जो ब्रेक टाइम था वो एज रीइंफोर्समेंट नहीं हो सकता बच्चे के लिए। नहीं, यहाँ पे टास्क से उसको ब्रेक मिल गई है, उसके इसलिए दिस इज नेगेटिव, उससे वो जो चीज स्टिमुलाई था वो रिमूव किया गया। ऐड करने का मतलब ये है कि एनी एक्टिविटी या फिर एनी स्टिमुलस जो ऐड किया गया हो, ठीक है, जैसे कैंडी है, या यू नो चॉकलेट है, बर्गर है, इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें, या प्ले टाइम है, वो खेलता है इक्विपमेंट्स के साथ, स्विंग लेता है, स्लाइड्स ले रहा है, तो ये रीइंफोर्समेंट्स हम कह सकते हैं कि ऐड हुई हैं। ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन, क्योंकि वर्क जो है, द वर्क डिमांड इज रिमूव्ड आफ्टर टास्क कंप्लीशन, दैट इज रीइंफोर्सिंग द टास्क बिहेवियर। उसका जो टास्क करने का बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हुआ है थ्रू रिमूविंग द टास्क आफ्टर ही कंप्लीट्स द टास्क। ठीक है, क्योंकि वर्क जो है वो डिमांडिंग है, वो रिमूव हुई है चीज, सो इसलिए जो है वो उसका बिहेवियर, टास्क करने का जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो गया है। ठीक है, समझ रही हैं आप मेरी बात? तो थोड़ी सी ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ी थोड़ी समझ आई, मेरे को खास नहीं आई। देखिए, जब हम बच्चे को एक टास्क देते हैं, एक्सक्यूज मी सर। यस माही, सर ऐसे भी हो सकता है ना कि वो जो टास्क उसको करवाया जा रहा है वो उसके लिए अनवांटेड चीज है। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए या उसको जल्दी से फिनिश करने के लिए कि उसको ब्रेक चाहिए, मैं जल्दी से इसको खत्म करूंगा टास्क को तो मुझे ब्रेक मिलेगी, तो वो भी एक अनवांटेड चीज हो गई है। या एग्जैक्टली, सो अनवांटेड चीज रिमूव। अब देखें, जब भी कोई बिहेवियर्स आते हैं, हम कहते हैं स्केप मेंटेन बिहेवियर है कि ये स्केप के लिए कर रहा है। जब हम उसे राइटिंग के लिए कहते हैं या हम कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए कहते हैं, वो स्केप करते हैं। या हेयर कटिंग बिहेवियर है, वो उससे स्केप करता है कि हेयर कटिंग नहीं करनी, वो स्क्रीमिंग करना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है। ठीक है, कि उसको वो बाल नहीं कटवाने, वो बाल कटवाना उसके लिए डिमांडिंग है। ठीक है, सो अब वो जो है, कोई भी टास्क जो डिमांडिंग होता है, अब हम उसमें क्या करते हैं, हम उसको रिलीफ देते हैं, वी गिव हिम द चॉइसेस।
हम उसे कहते हैं कि अच्छा ये टास्क कंप्लीट कर लो तो आप फ्री हो, you will get the break. So the break we are using as a reinforcement is basically the negative reinforcement. Getting my point? So the break we are giving as a reinforcement is a negative reinforcement because हम उसमें जो डिमांडिंग चीज होती है उसको शॉर्ट पीरियड करके उसके लिए इजी कर देते हैं ताकि वो कंप्लीट कर सके, और ब्रेक एज अ रीइंफोर्समेंट दे देते हैं उसे, टास्क वो वापस ले लेते हैं। अच्छा जस्ट आप एक रिंग को स्टैक कर दो, यू कैन गो। सो जैसे उसने एक रिंग स्टैक किया, हमने रिंग को रिमूव कर दिया, सो वो एज अ रीइंफोर्समेंट, उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि टास्क हम उसे रिमूव कर लेते हैं। सो दैट इज द intervention for the escape maintain behaviors. Is it clear, Akash, or not? जी सर, आगे पढ़ाते हैं, चलो ये बाद में समझ लूंगी। Chale, it's okay. Okay, so shaping to achieve a desired behavior, step-by-step trails are used to direct the participant towards the end goal. So वही pigeon के example हम ले लेते हैं कि how the Skinner actually shaped the pigeon behavior. That the pigeon in the Skinner box were not accidentally pushing the button that would release the food, as you watched in the video. So the pigeon peck on the button. So every time the pigeon peck on the button, so food release हो जाता था, वहां से वो food खा लेता था. How could he teach the pigeon that pressing the button would result in a positive outcome? As we watched in the video, जब भी उसने बार बार प्रैक्टिस की उस चीज की, every time the pigeon pecked on the button, so जो भी फूड था उसका वो प्रेजेंट हो जाता था, ठीक है, वो उसको एज अ रीइंफोर्समेंट मिलती थी। सो द रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन द बिहेवियर, एवरी टाइम प्रैक्टिस करने से, हर बार प्रैक्टिस करने से उसको रीइंफोर्समेंट मिली है। सो ही लर्न इट कि मैंने ये बटन प्रेस करना है तो मुझे फूड मिलेगा, ठीक है। सो द स्टेप वन इज गिव पिजन फूड व्हेन इट टर्न्स टुवर्ड्स द बटन, ठीक है। शेपिंग बिहेवियर, जैसे शेप हम करते हैं, जस्ट वो टर्न करे बटन की तरफ तो आई विल गिव द पिजन द फूड, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप, गिव द पिजन द फूड व्हेन इट वॉक्स टुवर्ड्स द बटन। तो जैसे ही पिजन बटन की तरफ जाने लगता है, मैं फौरन से फूड उसके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। सो ही लर्न दैट every time it turns towards the button, I get the food. So next time, I will not give the reinforcement on turning towards the button. I will let the pigeon, give the pigeon food when raises its head to the height of the button. अब मैं उसको जस्ट टर्न करने पे फूड नहीं दे रहा, मैंने उसको स्टॉप कर दिया, एंड आई एम गिविंग फूड ऑन, लाइक जब वो अपनी जो हेड है वो बटन के लेवल के ऊपर लेके आता है, मैं तब उसको फूड प्रेजेंट कर देता हूँ। सो द नेक्स्ट टाइम मैंने फूड यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट को स्टॉप कर देना है, और उस बिहेवियर पे रीइंफोर्समेंट करनी जो मैं चाहता हूँ, मेरा टर्मिनल बिहेवियर है जो कि प्रेसिंग बटन है। एवरी टाइम ही पैक ऑन द बटन, मैं उसको फूड प्रेजेंट कर देता हूँ। सो ही लर्न दैट पैकिंग द बटन लीड्स टू फूड। दिस इज अ शेपिंग बिहेवियर। सो इन शेपिंग there are some important concepts which is called the successive approximation. Here in this procedure, in this whole procedure, we are using the successive approximation of a strategy in the shaping procedure. So what is the successive approximation? Successive approximation is when you select the initial behavior. Like for example, if you want to teach somebody to say water, okay, and you know that he cannot say the word water, so you said that okay, let's just reinforce the child on saying wa or a, okay. So you started reinforcing the child on saying wa. Every time he says wa, you provide him the water. Yeah, you said it, good job. So now you will there will be a time when you will stop reinforcing the verb behavior or verb response. You will add up the water, okay. So whenever he will say water, so you will present the reinforcement
otherwise you will not give him the water. If we say wa, there is no water. If we say water, so you will give him the water as a reinforcement. So he learned that saying wa does not lead to get water. Saying water gets me the water. Okay, so he starts saying water. So there will be a time when he, every time he is saying water to get the water, you will have a concept of, let's just stop reinforcing the water behavior, let's reinforce the water. Water. So now this time you are reinforcing the water behavior, not water. So you are reinforcing the behavior, you strengthen that behavior, then you stop the reinforcement. You want the Sir, I have a question. yes, Maharaya. सर जैसे कोई एक बच्चा है, उसके साथ हमने टास्क स्टार्ट कर लिया, स्टेप 1 पे वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा और हम कंटिन्यूस ट्रायल्स ले रहे हैं, लाइक अगर आप एक सेशन में 10 मिनट्स तक बार बार रिपीट करवा रहे हैं और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं शो कर रहा, सो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेसिकली इनिशियली हमें रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है, चाहे हमें वर्बल प्रॉम्प्ट्स देनी हो या हमें जो है फिजिकल प्रॉम्प्ट्स देनी हो. सो इनिशियली वी स्टार्ट एवरी बिहेवियर विद प्रॉम्प्ट्स, ठीक है. सो आप प्रॉम्प्ट्स सर अगर प्रॉम्प्ट के साथ भी नहीं दे रहा, ना फुल फिजिकल के साथ ना वर्बल के साथ, आपका रीइंफोर्सर क्या है? सो यू हैव टू लुक एट द रीइंफोर्सर. अगर प्रॉम्प्ट वर्क नहीं कर रही, सो देन वी हैव टू लुक एट द रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट इज दैट थिंग जिससे बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा. अगर प्रॉम्प्ट से भी नहीं कर पा रहा बच्चा तो सो वी हैव टू चेक द रीइंफोर्समेंट, इज दैट रीइंफोर्समेंट ओके एक्चुअली द रीइंफोर्समेंट और नॉट. देखें अब अगर जो मैं कहता हूँ कि रीइंफोर्समेंट वर्क लाइक आपने दीवार पे कील रखे है ना, अब आप उंगली से उस कील को दीवार में लगाने की कोशिश करो, यू कैन नॉट डू इट जब तक कि आप उसके ऊपर हथौड़ी नहीं मारो. सो दैट हैमर वर्क्स एज अ रीइंफोर्समेंट. सो रीइंफोर्समेंट वर्क एज अ हैमर, यू कैन से. सो रीइंफोर्समेंट फिक्स दैट. सो वो जो पॉइंट है उसको ट्रिगर करती है कि यू विल गेट द रीइंफोर्समेंट इफ यू परफॉर्म दिस. सो अब हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं बार बार, लेकिन वो प्रॉम्प्ट से लर्न ही नहीं कर पा रहा, सो वी हैव टू लुक एट द रीइंफोर्समेंट, ठीक है. So, but that reinforcement with the practice and providing the reinforcement appropriately will lead to get appropriate responses, inshallah. So, जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल शेपिंग की पिजन जो एक्सपेरिमेंट है डीएफ स्किनर का, उसको जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें शेपिंग प्रोसीजर अप्लाई हुआ है. और शेपिंग में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एक है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. Successive approximation, when do you realize that you have to stop the reinforcement? Can anybody tell me कि कब आपको realize होता है कि यहाँ पे मुझे reinforcement को stop करना है? जब बहुत ज्यादा सर बच्चा जब जनरलाइज reinforcement हो पे जाए, डिपेंड हो जाए, जब से बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंड करने लगता है reinforcement पे। डिपेंड करता है reinforcement पे, मतलब विदाउट reinforcement वो रिस्पॉन्स देते ही नहीं है, जैसे अगर मैं एक प्रॉम्प्ट बच्चे के को साथ प्रॉम्प्ट भी. दे रही हूँ, फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, उसको लिखा रही हूँ, मैं उसको राइटिंग करवा रही हूँ, वो फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट वो बच्ची मुझसे मांगती है, और मैंने जब उसको प्रॉम्प्टिंग करना छोड़ दिया, तो अब वो ये करती है कि मुझे इशारा कर रही होती है कि मैं उसको प्रॉम्प्ट करूँ, तो मैं उसको कहती नो यू कैन डू इट. सो नाउ शी इज डूइंग वेरी वेल. तो जब मुझे लगा कि अब ये पूरी तरह से इसी पे मतलब रिलाई कर रही है, तो मैंने उसको प्रॉम्प्टिंग करना छोड़ दिया. हेलो. ठीक है. सॉरी. ओके, सो जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाए, अभी आपने बिल्कुल ठीक बोला है, और जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाए कि ये अब मुझे 100% या 80% रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं बच्चे के ऊपर, बच्चे से, तो एट दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप द रीइंफोर्समेंट. अगर आप उस रीइंफोर्समेंट को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते रहोगे तो वो बिहेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. आपने अपना क्राइटेरिया सेट करना है. फॉर एग्जांपल 2 days अगर 80 to 100% रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इंडिपेंडेंटली, सो देन यू हैव टू स्टॉप द रीइंफोर्समेंट. you need to you need to like set a criteria for the child कि आपने अब एक स्टेप ऊपर आना है, ठीक है. जैसे हम पिजन की बात करें कि पिजन पहले सिर्फ उस बटन की तरफ टर्न ही होता था तो हम उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे थे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे जब हमने देखा
every time he starts turning towards the button, he gets the reinforcement. We stop the reinforcement there. We actually let the pigeon to touch or to peck the button to get the food. ठीक है, सो हम रीइंफोर्समेंट हम अपने क्राइटेरियाज को चेंज करें. ठीक है, कि फर्स्ट क्राइटेरिया था कि जस्ट आपने व बोलना है तो रीइंफोर्समेंट मिलेगी. इसको जब हमने स्ट्रेंथन कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, तो वहां पे हमने रीइंफोर्समेंट देना स्टॉप कर देना है. उससे अगर आप आगे चले गए, आपने उसको ज्यादा टाइम रीइंफोर्समेंट दे दी, तो वो बिहेवियर व को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकोगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा फिर. ठीक है, सो इसलिए आपने व को वहां पे रीइंफोर्स करना बंद कर देना है. जब आपको अंदाजा हो गया कि इंडिपेंडेंट हो गया, फौरन से आपने रीइंफोर्समेंट स्टॉप. अब नेक्स्ट टाइम उसको व के साथ टर्क ऐड करना है, वहां पे आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, वर्बल प्रॉम्प्ट्स. ठीक है, आपने वर्बल प्रॉम्प्ट दी, जब उसको पता चल जाएगा कि मैंने इनकी प्रॉम्प्ट को फॉलो करने हैं विद इन फ्यू ट्रायल्स. ठीक है, बिकॉज उसको वो रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रही, सो दैट रीइंफोर्सिंग इज ट्रिगरिंग the thing कि क्यों नहीं मिल रही, let's try something else, water. So whenever he said water, good job, you did it, here is your reinforcement. So बच्चे ने realize कर लिया कि okay, water पे reinforcement मिली है. So 3-4 टाइम आपने उसको reinforce किया, उसने he start saying water. So good job. Okay, so ये तो हो गया successive approximation. इस चीज को आपने concept को ज़हन में रखना है. Second concept जो है, that is the differentially reinforce करना. Differentially reinforcement karna, what does it mean when we say we are differentially reinforcing the individual? So it means that you are only reinforcing the target behavior. Okay, like for example, in this whole example of pigeon and the water, so you are avoiding the previous behavior, you are not reinforcing that. You set your criteria that I just need to reinforce the water, not the ver sound. So setting the criteria to focus on and to reinforce the water response and not reinforcing the ver response. So that is the differentially reinforcing reinforcement. कि हमने जो सेट किया टारगेट, उसी को सिर्फ रीइंफोर्समेंट मिले, बाकी रिस्पॉन्सेज जो एरर्स वाले रिस्पॉन्सेज हैं उनको हम रीइंफोर्स ना करें. जी हबीबा प्लीज. अब सर कुछ बच्चे ऐसे नॉन वर्बल होते हैं, लाइक वो नहीं बोलते, उनके फंक्शनल लाइक मोटर फंक्शनिंग का इशू होता है, तो उनको हम लोग पैक्स ही यूज करते हैं. तो हम जरूरी तो नहीं कि फिर उनसे साउंड्स के लिए करवाएं, लाइक हम लोग फिर पैक्स के थ्रू उनसे करवाते We हैं, can use तो the ये PEX. ठीक है. Yes, it is also fine. You can use the तो PEX. फिर उनके मतलब हमें साउंड्स पर फिर इतना नहीं, हम क्योंकि वो उनका एक डिसऑर्डर उनका है, तो फिर हम उसमें तो कुछ नहीं कर सकते ना. Exactly, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही यही हैं कि इफ अगर बच्चा नॉन वर्बल है, वो नहीं बोल पा रहा, अपनी नीड्स वांट्स नहीं बता पा रहा, तो यू यूज द पैक्स. ठीक है, और साथ साथ हम्म, उसकी वर्बल कम्युनिकेशन पे वर्क हो सकता है, लेकिन वी हैव टू प्रोवाइड इन द ऑल्टरनेट वे टू कम्युनिकेट, ताकि उसकी जो स्ट्रेस लेवल है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कम की जा सके. ठीक है. ओके, Okay, थैंक I यू. hope so you understand what is the successive approximation and the um, differentially reinforcement then. Okay, so we have discussed the reinforcement. Reinforcement always strengthen the behavior. So even though reinforcement is negative or positive, so it always increases the behavior. So I asked one of my question in my IBT classes, I what is the negative reinforcement? The student responded that okay sir, वो जो बच्चे को जो चीज़ें पसंद नहीं है हम उसको ऐड करते हैं. मैंने कहा पसंद नहीं है उसको हम ऐड करते हैं कैसे, मतलब कि उसको अगर वो बच्चा रो रहा है, वो चुप नहीं कर रहा, तो हम उसको डांट दें अगर, या उसको उसको किसी चीज़ से डराएं, हम उसको जैसे हम अंधेरे में उसको डरा दें, या कैट से डरा दें, या किसी एनिमल से डरा दें, ताकि वो बिहेवियर ऐसा परफॉर्म ना करे. सो दैट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. मैंने कहा what are you considering the negative word, like a negative does not means that harming or scaring anybody, or threatening anybody. So it does not mean to threatening the individual to increase the behavior. So it means that unwanted चीज को आप remove करते हो to strengthen the behavior. ठीक है, so that is the negative reinforcement. So negative does not mean to harm or to threaten anyone. So punishment
Punishment, yes, we in the punishment always decreases the behavior. Even though it's a positive punishment or a negative punishment, it always decreases the behavior. Okay, so what is the negative punishment? Let's discuss on it. नेगेटिव पनिशमेंट में क्या करते हैं हम? सर जो नेगेटिव पनिशमेंट होती है उसमें सर जो उसकी सॉरी सर जो उसकी वांटेड है, जैसे उसकी सपोज कुछ टैब पसंद है, तो अगर वो रो रहा है तो हम उसका टैब रिमूव कर देते हैं। तो जो जब हम कोई चीज रिमूव अन रिमूव प्लेएबल थिंग, हम्म, ठीक है। हमने जो चीज़ें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चीज़ों को रिमूव करते हैं, उनके जो रीइंफोर्सर्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ अ चाइल्ड कम्स होम लेट एट नाइट, सो द पेरेंट्स टेक अवे कार कीज फॉर अ वीक, कि हम उनसे कार की चाबियां ले लें वापस, के नहीं अब नहीं मिलेगी एक हफ्ते के लिए क्योंकि आप लेट आते हो। और या फिर स्टूडेंट्स जो है वो टॉक्स ड्यूरिंग द क्लास, सो टीचर रिमूव रिसेस टाइम। जैसे दो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो टीचर कहेगी यू गाइज विल नॉट हैव द लंच ब्रेक या रिसेस टाइम, यू विल नॉट हैव इट। सो आपको क्लास के अंदर ही रहना है, बाकी सारे स्टूडेंट्स बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स रिसेस टाइम पे आधा घंटा या 30 मिनट्स या 60 मिनट्स दे कैन प्ले, बट दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट प्ले, ये क्लासरूम में रुकेंगे। ये भी एक नेगेटिव पनिशमेंट है, सॉरी। इसी तरह से अगर चाइल्ड थ्रोज द टॉय, सो द टॉय इज टेकन अवे, हम उससे सारे टॉयज उससे वापस ले लें। या एम्प्लॉयज़ अगर मिस यूज़ करते हैं कंपनी फ़ोन्स को, सो फ़ोन प्रिविलेजेस आर रिवोक्ड, कि हम उससे वो फ़ोन्स वगैरह बंद कर दें। लाइक वो यूजली हम लोगों ने भी अपने स्पार्क में ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है कि इफ एम्प्लॉय इज यूजिंग द मोबाइल फोन, सो वी टेक द मोबाइल फोन फॉर 2 days। सो नेक्स्ट 2 days के लिए उसको मोबाइल अपना, वेन एवर ही रीच स्पार्क, सो ही हैज टू सबमिट हिज फोन टू द मैनेजमेंट for the next 2 days. So ये भी एक punishment है. It is working very well. Even though some therapists are using the mobile phone, I know them, but they are using in the blank spaces, which is not covered in the cameras. So I know them, but I just want कि आप cameras में mobile use ना करें, because parents always observe through the cameras. Okay, so that is also the negative. सर कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, उनको भी देखना होता है। अच्छा, तो ये मारो या आपका फोन अभी अब कैप्चर करते हैं। That means you use the phone. श्योर। Okay, so सर क्या आपके आपके स्पार्क में क्या पेरेंट्स जो है थ्रू कैमरा लाइक ऑब्जर्व करते हैं, और या रिक्वेस्ट करके लाइक किसी दिन अगर कोई एक्टिविटी देखना चाहें तो? बहुत अच्छे से आके ऑब्जर्व करते हैं। we have अच्छा very big screen in the waiting area. So उस पे सारे कैमरा सीसीटीवी जो है ना वो नजर आ रहे होते हैं। सर मैं उसमें इंशाल्लाह अगर आपकी एक एक कामत मूवमेंट। आऊंगी तो मैं चाहूंगी कि मैं विजिट करूं आपका सेंटर Sure, you can come. You're welcome. इंशाल्लाह। Inshallah. So let's discuss the punishment. Okay, there are multiple types of reinforcement, positive, negative. अच्छा, इसमें हम प्राइमरी रीइंफोर्सर्स होते हैं, कुछ कुछ सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स होते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स क्या हैं? ऐसे रीइंफोर्सर्स जिनकी अपनी वैल्यू होती है, उन वो किसी से वैल्यू उधार नहीं लेते, बोरो नहीं करते, ठीक है। वो कंडीशनड नहीं होते, दोज आर अनकंडीशनड रीइंफोर्सर्स, लाइक फूड is a unconditioned reinforcer. बायोलॉजिकल नीड्स हैं हमारी, वो भी अनकंडीशनड reinforcements हैं या प्राइमरी reinforcers में आते हैं। ड्रिंक्स हैं, ऑक्सीजन भी एक प्राइमरी रीइंफोर्सर या रीइंफोर्सर तो नहीं है खैर, सो बट इट इज अ रीइंफोर्समेंट। सो ये हमारी एक बायोलॉजिकल नीड भी है। सो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी भी हैं जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए